Welcome with another episode of Candid with Pasha. Candid with Pasha is a series of live panel discussions that discusses the relevant IT issues with the industry leaders. The primary objective for the Candid with Pasha is to raise awareness about the IT sector, the digital Pakistan, and all the relevant topics in the government sector, policymakers, and industry at large. So we have a very esteemed panel today, and very knowledgeable, insightful people. I hardly see all of them together at one place. So we are very lucky to have them all today. And um, I believe this is going to be very open and interesting discussion today. So we have, first of all, Shahzad Shahid, who's chairman of Pasha and also CEO of one of the top payments company, TPS in Pakistan. Then we have, Walaikum Salam. We have Nasir Akhtar, CEO Infotech Group, and he's the veteran of our IT industry. And nobody knows more about the policy issues and the industry issues and more than Nasir Saab. And he's also ex-chairman of Pasha. Assalamu alaikum. Then we have Nadeem Elahi, MD of TRG Group. And Nadeem, we have also been working very closely with many governments before. And he has been engaged with all sorts of governments, in government, federal government, tax agencies, and one of the most knowledgeable persons when it comes to government policy and tax issues. We welcome you, Nadeem Saab. Then we have Amara Masood, CEO of NDC Tech, and we are lucky to have her because of her insights on the financial side as well as, so we will be looking to have her insights about the budgets and what the government has announced. We welcome you, Amara. And then we have, last but not the least, Barkan Saeed. He has been the youngest ex-chairman of Pasha as well. He runs a software company called Waste Tech Solutions. And his perspective is mostly very important from not only from the industry side, from the government side, but also from an SME sector as well. Welcome, Barkan. Thank you. So first of all, I would like to start the discussion today because we are sitting in a very unusual times. The world, the economy is globally is in a bad shape. Companies are struggling, businesses are struggling. The COVID impact has a real health and safety concern, but even the bigger concern comes on the economic side. I would like to start with Barkan and ask him, what has his experiences been talking to different companies about COVID? What has been the impact on the companies, and has there been any help in this regard from the government to support the companies? Right. So impact different hai different companies ke liye. Some companies who are in the healthcare sector, their business has reportedly increased. Someone who are in the last mile delivery or the grocery delivery or इस तरह के solutions जो e-commerce कर रहे हैं, उनका business तो increase हुआ है. But other than that, definitely IT industry खुद से एक as such industry अगर आप कहें तो नहीं है. We are providing services most of the time to other industry verticals. तो उसमें travel के लिए जो काम कर रहा था और बहुत सारे startups जो हैं जो different category में चल रहे थे, उनका venture capital dry up हो गया है. तो I have seen personally stories, people laying off 40 people, 50 people, people reducing salaries by 30-35%. So even in my circle, I have seen around 400-500 layoffs personally myself, जो industry में हुए हैं, which is 1.5 lakh की industry में इतना बड़ा number नहीं है, but that's just my own personal circle. And then there are companies जिन्होंने reductions भी की हैं salary में, और अब definitely there is another problem कि जो companies hire कर रही हैं, उनके लिए इस time में hire करना बड़ा मुश्किल है. As far as the government support is concerned, I would say the major government support जो government ने दी है COVID के दरमियान वो है
एक लोन की स्कीम जो 3 महीने की लोन की स्कीम है, उसमें चैलेंज जो है मेजर ये हुआ है कि बैंक्स ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ज्यादातर फैसिलिटेट किया है जिनके ऑलरेडी उनके साथ कोई ना कोई लोन का एग्रीमेंट चल रहा था, एंड बैंक्स व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव given the same companies the loans, and they have, and most of the IT companies उनके collateral के भी issues होते हैं, तो even जिन्होंने collateral का issue solve भी किया है तो banks have preferred कि वो अपने existing customers को दे, और IT companies जो हैं वो generally loans वाली side पे इतनी strong नहीं है, they don't take a lot of loans क्योंकि collateral का उनका मसला रहता है. तो I would say कि almost zero to no support to the industry from the government. अच्छा, इस पे से मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब हमने पाशा ने अपील की गवर्नमेंट से कि जी हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें आप, तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मतलब उस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बैकलैश आया कि जी ये इंडस्ट्री जो है ये क्यों मांग रही है, और मुल्क के बहुत बुरे हालात हैं और कोविड-19 के मसले, और हम मुल्क सफर कर रहा है और आप क्यों मांग रहे हैं. तो अगेन हमारा उसमें मकसद ये था कि जी देखें, हम एक तो हमारा डेफिनेटली सर्वाइवल था कि लोगों की जॉब्स बच जाए. उस पर खैर एक कमेंट कि जी ये सेठ हैं और ये अपनी गाड़ियां बेचें और ये लोगों की जॉब्स रन करें, बट ये एक बड़ा सोशलिस्ट, हम एक सोशलिस्ट कंट्री में नहीं रहते, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बिजनेसमैन भी नॉर्मली पूरा साल डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से सफर कर रहा होता है. तो जब इस तरह का बैकलैश आया कि जी हमारा उस वक्त मकसद ये था कि हम लोगों की एक तो जॉब्स को सर्वाइवल करवाएं किसी तरह, और दूसरा आप देख लें उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज आपको एक्सपोर्ट्स चाहिए और आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, एंड द गवर्नमेंट्स बिगेस्ट वरी आफ्टर कोविड इज कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बचाया जाए. तो जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं वो खुद से ये सोचती हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को कुछ कैसे बचाएं. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है कि इंडस्ट्री को लगा दिया गया है जी आप प्रपोजल लेके आए, और जब वो प्रपोजल लेके आते हैं तो दे आर प्रेजेंटेड एज के दे आर ग्रीडी, एंड दे ये सेठ हैं सारे, और वो एक पिक्चर में उनको पेंट कर दिया जाता है. और अवाम भी क्योंकि हमारी जनरली एक ऐसे माइंडसेट की हो चुकी है जो कि एंटी बिजनेस माइंडसेट रखती है, तो जैसे ही बिजनेसमैन कोई बेनिफिट मांगता है तो एवरीबडी जस्ट, और ये ओवरऑल हमारा मसला है पाकिस्तान का, बजटरी प्रपोजल्स हो, किसी किस्म की चीज हो, कि यू कैन नॉट सिंपली गिव एनी बेनिफिट टू द इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि ये जो है ये सेठ हैं और इनको पैसा चाहिए, एंड दिस एंड दैट. नोबडी इज थिंकिंग ऑफ द ओवरऑल गुड ऑफ द कंट्री. थैंक यू. So thank you for that. So I think the answer to that is कि कोरोना में so far IT इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया जिससे उनको इस मुश्किल टाइम में सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से, एंड दे आर largely on their own so far. I would like to ask Nadeem Elahi about, because you run the largest BPO company in Pakistan. BPO सेक्टर में दो डिफरेंट तरह की बातें सुनने को मिली. एक तो ये भी मुझे सुनने को मिला कि some companies have added a lot of staff because some other countries were not able to work from home, और उसकी वजह से उनके बिजनेस को फायदा हुआ. Whereas a lot of smaller BPOs, even freelancers, we have heard के during COVID वो जो आपकी IP white listing और आप VPN और बाकी चीज़ों की वजह से उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी सारा एक शोर सुनने को मिला कि BPO इंडस्ट्री का उससे नुकसान हो रहा है. सो ये सारा जो कोरोना की सिचुएशन है BPO सेक्टर का, अगर आप ओवरव्यू दें, और ओवरऑल इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज, are they helping BPO sector or are they not? So basically इसके अंदर I think आपका पहला सवाल जो है about the overall industry in terms of how we have done. So I think it is again जैसे बरकान ने कहा ना, a lot of it is client dependent, right? Certain sectors like telecoms and e-commerce and digital services have done really well, right? So in fact उनके यहाँ तो growth भी हुई है. If you're serving Amazon, if you're serving Walmart, if you're serving AT&T, or the local telecoms, I think things have been very good. If you've been working with ride hailing, you've been working in other sectors, then I guess it is it has not been that good. So I think it all depends. अब जो बड़ी companies हैं, companies like ours have a broad mix of customers, right? So हमारे पास telecom के customers भी हैं, e-commerce के भी हैं. So I think अगर large companies को देखा जाए, so by and large, there has been a modest increase in business. And the reason being that,
some business has shrunk. For example, we work with ride hailing, that business has shrunk. At the same time, we work with all the major telecoms in the world, that business has gone up. So obviously, जहाँ पे छोटी companies की बात आ जाती है, obviously they are more client dependent, right? For example, they'll work with one customer or two customers, and if their customers are in those sectors which are affected, then the entire business is badly affected, right? So I think एक तो ये है, ये समझने की जरूरत है. But by and large, अगर BPOs को देखा जाए, large BPOs को देखा जाए, TRG है, Systems है, Mindbridge है, Abacus है, I think they've all done well. Overall, business has been sort of medium to sort of modest growth overall, right? In the profile. So so that's been on the positive side, right? As far as the government is concerned, देखिए एक चीज जो उन्होंने अच्छी की शुरू से बीपीओ के लिए, वो उन्होंने ये रिकग्नाइज किया कि देखें ये एक एसेंशियल सर्विस है, राइट? अगर सब ने घर बैठ जाना है तो फिर सर्व कौन करेगा? अगर टेलीकॉम्स के फ्रंट ऑफिस बंद हो जाएंगे, बैंक्स के ब्रांचेस बंद हो जाएंगी, तो पीछे कौन करेगा? बैक ऑफिस ही करेगा ना. और बैक ऑफिस को पावर कौन करता है? वो पीपीओस करती हैं या इंटरनली जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं. तो आई थिंक ये एक अच्छा उनकी तरफ से स्टेप था कि बीपीओस को ऑपरेशनल रखा. तो उसमें हमें काफी सारा सपोर्ट मिल गया. एंड अगेन स्मॉल कंपनीज देयर अगेन सफर्ड बिकॉज वो वर्क फ्रॉम होम में चैलेंजेस आ गए. एंड देन अगेन आई थिंक कस्टमर टू कस्टमर हमें सेंसिटिविटी भी इसमें देखनी होती है ना. सम कस्टमर्स who don't have sensitive data will allow work from home, right? And that can happen easily. But other customers like telecoms, we are dealing with sensitive financial data. We have people's locations data. तो वो तो घर नहीं जा सकती, right? There is no way कि उस किस्म का काम कर. तो ये भी एक मिक्स है इसके अंदर, right? अच्छा, एक सिल्वर लाइनिंग जो हमने देखी, जो लार्ज कंपनीज विटनेस कर रही हैं, वो यही है जो पॉइंट आपने मेक किया कि इस हुआ ये कि जब when the lockdowns were announced and they were simultaneously, I think, across the world where BPO work is done, the bigger markets, right? India is a big market, Philippines is a big market, Caribbean mein kaam ho raha hai, South America mein ho raha hai. Philippines is the largest, right? If you look at it, Philippines is 1.5 million people. So there, middle of March mein ek saft kisam ka lockdown aaya aur everything got shut down, right? So all of a sudden, customers jinka business sahi tha, they were scrambling to get work, right? And to get locations. So usme, there was some advantage that large BPOs had. Obviously, large customers take time to make decisions, but I think that risk perception ke Pakistan mein kaam nahi karna, that we have felt ke thoda sa uska ek acha impact aaya, right? And I think federal government, they let us allowed to open. Then Razak Dawood was very helpful. He went on Twitter and he said, some very positive things ki aap business kare. So I think by and large, the BPO is generally a good story, I would say. And I think the government, as far as at least in the early days of the COVID reaction, I think it was supportive. Thank you very much. So दो चीजें जो I take out of it, एक तो Ministry of Commerce रज़ाक दाऊद साहब की काफ़ी और एरियाज में भी तारीफें सुनने को मिली हैं, एंड बहुत टाइमली इंटरवेंशंस उन्होंने ली हैं. एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, प्राइवेट सेक्टर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो दे अंडरस्टैंड what's important to run the businesses. So government did well to quickly intervene and at least allow the BPO sector to operate during COVID. I would go to Amara before I go to Shahzad and ask her कि अब ये जो भी गवर्नमेंट ने बजट भी अनाउंस किया है and everything, so What's your opinion जब गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है? एक तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि दो जो उसकी साइड्स हैं, एक तो PSDP है, डेवलपमेंट बजट होता है जिसमें नए प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी एक टैक्स साइड है, रेवेन्यू साइड है. उसमें अगर नए टैक्स लगते हैं या कोई आपको इंसेंटिव मिलता है, तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ये क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री या कंपनीज के लिए, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि एक बजट में क्या होना चाहिए for companies like you to grow? Thank you for asking this question. So I think overall, as we all know, इस साल जो बजट में changes आए हैं वो ज़्यादा नहीं है from what has been there as a precedence. So I think there are two things we need to look at from the previous budget, and what are the things which it has not been able to incentivize.
सो एक तो ये है कि जी आपका जो विथहोल्डिंग टैक्स है, अगर मैं टैक्सेशन साइड की बात करती हूँ तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपका अभी भी मतलब इवन दो इट इज़ एट 3%, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट IP तो वो आपका अभी तक 15% के ऊपर है। तो उसमें गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि देखिए इस माहौल में जब आप इकोनॉमी को ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं तो आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा फॉर पीपल टू इनोवेट एंड क्रिएट IP फ्रॉम द लोकल मार्केट, राइट। दूसरा ये भी आपको देखना है कि इवन फ्रॉम मेरी एक सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन है और हम ये देखते हैं कि हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे तो बहुत इंसेंटिव मिलता है बिकॉज देयर इज जीरो टैक्स ऑन दैट, लेकिन हमें जो लोकल हम सर्विसेज देते हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगेन जब तक हम अपना लोकल एक वो बिल्ड नहीं करेंगे तो एक जो एंड कस्टमर भी जब सोचता है कि मैंने टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी शाय अवे कर जाते हैं बिकॉज वो जब सब टैक्स वगैरह मिला के देखते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना है इन द न्यू बजट एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स to be able to invest in digitization, to be able to invest in technology locally in Pakistan, and for that to happen, we need to look at the tax. तो दूसरा जो एरिया है टैक्सेशन का वो जो लोकल गवर्नमेंट करती है और व्हाट आई हैव बीन इंटरेस्टेड टू सी इन दिस न्यू बजट कि I mean the range of the local taxation was between 13% and 17% depending on which area you are in. लेकिन इस दफा पंजाब ने कहा है कि हम इसको as low as 5% ले जाएंगे या शायद 4% ले जाएंगे. So that is a very significant change in the in the competition between. So इसके मतलब है कि जो कराची की companies हैं, they will be at a significant disadvantage than the companies which are registered in Punjab, and you will see that there will be a direct shift of people wanting to go into that direction. So हमें I think budget के point of view से government को जो चीज़ें ख्याल रखनी है वो ये हैं कि वो इंसेंटिवाइज करें उन एरियाज को जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, और अगर हम सर्विसेज साइड पे देखें तो वो ये इंसेंटिवाइज करें कि कंपनीज अपना पैसा वापस अपनी कंपनी में डाल के उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो या लोकल ग्रोथ हो. तो ये दो एरियाज हैं व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. इसमें मेरे ख्याल में लेटर ऑन भी थोड़ी सी बात होगी अबाउट पंजाब टैक्सेशन एंड वर्सेस सिंध. I would come to Shahzad and I would like to ask कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, he talked about कि $20 billion हमने एक्सपोर्ट्स को लेके जाना है और IT सेक्टर, और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेस. अदरवाइज $20 billion जहाँ पे फिलीपींस आपका $30 billion के करीब कर रहा है सिर्फ PPO सेक्टर से, और इंडिया जैसा मुल्क $130 billion कर रहा है, तो $20 billion इज डेफिनेटली अ फेयर शेयर फॉर पाकिस्तान. मगर क्या आपको उस एम्बिशन की डायरेक्शन में कोई बजट या पॉलिसी की साइड पे कोई नज़र आते हैं ऐसे इकदाम जो कि $20 billion को की एक्सपोर्ट्स को अचीव भी कर सकें? क्योंकि ये 10x माइंडसेट है कि अगर आपने इतनी ग्रोथ करनी है तो जाहिर है कुछ सिग्निफिकेंट उसके लिए पॉलिसी भी चाहिए और बजट भी चाहिए. जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सैयद. सो इसमें हम सब ऑल द पैनलिस्ट हियर ऑन दिस डिस्कशन, हम सब पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं टू गेट द रिटर्न. मुझे अब तक जो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ मिनिस्ट्रीज़ के साथ और डिफरेंट इस पूरे प्रोसेस में बजट क्रिएशन के, और गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट इस वक्त एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूजन का शिकार है. इट सर्टेनली हैज़ एम्बिशंस और बड़ा जेन्युइन डिज़ायर है, लेकिन उस डिज़ायर के साथ जब आप कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू हैव एलोकेटेड, कैसे काम करना चाहते हैं,
वहां पर वो देखते हैं टुवर्ड्स द इंडस्ट्री के आप लोग कुछ कर लें, यू नो, एंड हाउ इज इंडस्ट्री परफॉर्मिंग। इंडस्ट्री कहती है कि जी अगर आप देखें जुलाई से लेके मार्च का जो पीरियड है आईटी एक्सपोर्ट्स का, दैट हैज ग्रोन बाय 23.94%। आई थिंक दिस द हाईएस्ट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मेरे ख्याल में इवन विद कोविड अगर थोड़ा सा ये गिरता भी है तो भी इट विल बी अ वेरी रिस्पेक्टेबल ग्रोथ, यू नो, ईयर ऑन ईयर बाय आईटी। ये सब ऑर्गेनिक ग्रोथ है। इसमें एटलीस्ट मुझे कहीं पर भी पॉलिसी इंटरवेंशन, मुझे इसमें कहीं पर भी स्टिमुलस, मुझे कोई वो चीज़ नज़र नहीं आती जो कि अगर मैं देखूं पड़ोस में एक बड़ा कोई 2-3 महीने पहले बड़ा बांग्लादेश का एक बड़ा चल रहा था, एक इट हैज़ गॉट अ वंडरफुल इकोनॉमिक पॉलिसी, बांग्लादेश हैज़ बीन ग्रोइंग एट 8%, अचानक आई थिंक इट्स ग्रोइंग फास्टर देन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। सो लिटिल पीपल नो कि बांग्लादेश ने 2017 जुलाई में उन्होंने 10% कैश इंसेंटिव स्टार्ट कर दिया था फॉर आईटी एक्सपोर्टर्स। पाकिस्तान में हम लोग 2-3 साल से, पिछली हुकूमत ने हमें प्रिंसिपल नोट दे दिया था कि जी बिल्कुल सही है, आप 5% ले लें, और उस वक्त से लेके 3 साल हो गए हैं। सैयद, आई एम श्योर आप इसमें काफ़ी वक्त लगा चुके हैं, बरकान लगा चुके हैं, मैं भी काफ़ी इसमें, तो वो यू कीप रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट में कैपेसिटी बहुत कम है। Capacity is not measured by number of people, it is primarily measured by the right people who own the sort of, you know, thing and seek support of the industry. मुझे लगता है वहां पर कम कैपेसिटी की वजह से वो कहते हैं आप हमें पूरा प्रपोजल बना के दे दें। Now this is almost impossible for a private sector entity to create a proposal which will make sense for the government. हम तो उसको अपने एक नॉर्मल तरीके से प्रपोजल बनाते हैं कि हमें हमारी क्या रिकमेंडेशंस हैं, और वो क्योंकि कैपेसिटी कम है अक्रॉस द वैल्यू चेन, तो वहां पर कहीं ना कहीं जाके उसके रिव्यूज में और उसके और कंसर्न्स में चीजें आती हैं। द प्रोसेस बिकम सो लॉन्ग कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा पाते। तो ये जो $20 बिलियन है, आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान जिसमें 135 मिलियन से ज्यादा यूथ हैं, जिसके अंदर यू नो, आई थिंक ऑल द डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान आर ऑल पॉजिटिव। अगर आप देखें ड्यूक यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च की थी about the global value chain, उसमें कहा था कि पाकिस्तान is among the top countries in terms of you know, global offshoring, because the youth, because of the language accent, because of the cost of servicing। लेकिन उन्होंने बोला कि पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो है वो या अनस्टेबल है या वो इरेटिक है, कोई इसकी डायरेक्शन सही नहीं हो पा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा फियर ये है कि अभी तक का बजट देखते हुए मुझे कोई ऐसी चीज बजट में नहीं नजर आई सही है जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं 4 बिलियन, अगर मैं असम्पशन ये ले लूं कि मैं $4 बिलियन पर ईयर एक्सपोर्ट ग्रो करता हूं, तो उसमें कोई मुझे ऐसा एलिमेंट नहीं नजर आता जिससे मैं $4 बिलियन पर ईयर ग्रोथ कर सकूं। इसका मतलब वी कंटिन्यू टू हैव द ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो लेट्स से एट बेस्ट आपने कहा कि मैं 10% कर लूंगा गिवन द सिचुएशन। सो 10, you don't need 10%, right? You need at least 200% growth. So 200% growth या 100% growth comes with certain elements. एक छोटी बात बता देता हूँ, हम सब लोगों ने काफी इसमें डिफरेंट इदारों से, टी-टैप से, मिनिस्ट्री से, PSEB से, सबसे बात की कि पाकिस्तान के बारे में कोई रिपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि पाकिस्तान की कोई क्रेडिबल रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, IT ग्रेजुएट्स कितने हैं, यू नो, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो हमारे पास कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हाउ कैन समबडी इन्वेस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी टू पाकिस्तान? हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का अभी क्या स्टेटस है, 3 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि वो जो पैसा आज लगाएगा वो तो 3 साल बाद रिटर्न लेके जाएगा। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट, और डिजायर का मसला भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट putting the money where the mouth is and having the right people and right capacity to work with the sector and deliver. एक फॉलो अप क्वेश्चन करूंगा कि आपने पाशा की तरफ से क्या टॉप 3 प्रपोजल गए थे गवर्नमेंट को बजट के लिए, और क्या वो आपको मिले या नहीं मिले? देखिए, अगर हम देखें ना, इस वक्त जो आपने बात शुरू में की थी PSDP की और डेवलपमेंट बजट की, उसमें अगर आप देखें तो इसमें एक तो मैं चाहूँगा क्लियर कर लूँ कि उसमें जब मिनिस्ट्री की बात आती है तो उसमें IT और टेलीकॉम दोनों होता है। सो हमें वैसे नजर आता है कि जी कुछ 672 मिलियन रुपीस का एक जो है PSDP का बजट है, लेकिन अगर हम उसको अंदर झांक के देखते हैं तो पता ये चलता है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर का जो बजट है वो हार्डली 1/3 है, बाकी सारा टेलीकॉम से रिलेटेड होता है, जिससे हमें डायरेक्ट फायदा IT सेक्टर को नहीं होता, जिसकी हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो 1/3 है उसके अंदर भी बहुत सारा पैसा जो होता है वो ताल्लुक जो है गवर्नमेंट की अपनी डिफरेंट
ऑटोमेशन की एक्टिविटीज से होता है। तो एक तो ये ओवरऑल जो बजट है पीएसडीपी का टुवर्ड्स आईटी एंड टेलीकॉम, इट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8 to 9%, which is not a good sign under the current COVID situation. मेरे ख्याल में IT and telecom should have been the major beneficiary of government resources, क्योंकि they can enable those businesses and economies जिनकी आपको लगता है कि लॉकडाउन में जो कि सर्वाइव नहीं कर सकती, अदरवाइज अगर उनके पीछे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ना हो। तो हमारी 3 जो रिकमेंडेशन थी बड़ी टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर सेक्टर टू रियली ग्रो एंड फास्ट ट्रैक, एक उसमें तो थी बहुत प्रिंसिपल बात थी उसके अंदर, वो ये थी कि जी आप जो है मेक इन पाकिस्तान करें। हमने डिजिटल पाकिस्तान की हम लोगों ने बात की और तानिया को जो है गवर्नमेंट लेकर आई काफ़ी बड़े एक मैंडेट के साथ और उनका सारा सिलसिला हुआ। लेकिन डिजिटल पाकिस्तान के लिए आपको कोई बजट एलोकेट करना पड़ेगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा इस बजट के अंदर, और उसके साथ आपको एक पॉलिसी लानी पड़ेगी मेक इन पाकिस्तान की, ताकि डिजिटल पाकिस्तान हैज़ टू बी डन बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान। So it creates employment, it creates revenues, it creates credibility, it creates a digital Pakistan. ये मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये हमारी एक डिमांड थी। दूसरी जो हमारी डिमांड थी वो थी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स। बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं, बीपीओ ऑपरेटर्स हैं, अभी उनको एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। मिसाल आपको मैं देता हूँ, अगर सॉफ्ट बोर्ड का ऑफिस अगर कराची में तारिक रोड पर है जहाँ ज्यादा शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, सो वी डोंट हैव इवन इन अर्बन एरिया लाइक कराची, वी डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पर आप कहें कि सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगी, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे बेहतर कनेक्टिविटी है बाकी एलिमेंट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन की बात हमारी काफ़ी ज़्यादा सुनी गई थी, समझी गई थी, लेकिन इट इज़ नॉट येट अप्रूव्ड। दूसरी जो हमारी बात थी वो हमारी थी इसके साथ साथ कैश रिवॉर्ड की ऑन द एक्सपोर्ट्स। जैसे मैंने बात की कि बांग्लादेश जुलाई 17 से जुलाई 2017 से वो 10% रिवॉर्ड दे रहा है, और ये हर मुल्क देता है ज़्यादातर। हम पिछले 2-3 साल से बात कर रहे हैं और वो इस पर भी प्रिंसिपल गवर्नमेंट का बिल्कुल वो है कि होना चाहिए, बट सम हाउ द बॉल गेट्स ये बॉल गिर जाती है कहीं रास्ते में, तो ये भी नहीं हो पाया। और तीसरा जैसे मैंने बात की थी मेक इन पाकिस्तान की, तो और ये मार्केटिंग के लिए कोई बजट जी एक बड़ी आप सॉरी मैं भूल गया था, एक मेरे ख्याल में एक उस पर भी एक बिल्कुल एक चीज तय हो गई थी एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारा ब्रांड इमेज का है। इस वक्त इंडिया की जो सक्सेस है या हमारी सियालकोट की सक्सेस है या फैसला की सक्सेस है, क्योंकि ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एज अ होल जो ब्रांड है वो टेक्नोलॉजी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय वेरी बिग कंट्री विच आर वेरी बिग इन टेक्नोलॉजी। उस पर एक अच्छी खासी एफर्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका भी इस बजट में कोई तस्करा नहीं है। तो ना तो कोई बजट में मार्केटिंग या ब्रांडिंग के लिए कोई खास एलोकेशन है, अगर बल्कि मुझे बड़ा अफसोस सा हुआ था ये देख के, उसमें एक छोटा सा एक पैसा लिखा हुआ है 40 मिलियन रुपए फॉर एक्सपोर्ट सपोर्ट। 40 मिलियन रुपए, एंड माय कलीग्स कैन वाउच फॉर इट। एक मिड साइज कंपनी का महीने का पेरोल बजट इससे ज्यादा का होता है। तो अगर आप पूरे मुल्क की इकोनॉमी आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को अगर आपको 200% ग्रो करना है, अगर उसके लिए आप 40 मिलियन रुपए का साल का बजट रखेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी मेरे ख्याल में। आई थिंक इट्स डिपेंड, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द सेक्टर टू समहाउ इटसेल्फ स्टार्ट ग्रोइंग विदाउट एनी सपोर्ट। ठीक है जी, थैंक यू। सो जैसे आपने कहा कि अगर मुल्क की एक्सपोर्ट्स में आपने 200% ग्रो करना है और $2 अरब ग्रो करने हैं, और उसमें सिर्फ $1 मिलियन या $2 मिलियन लगा के यू कैंट एक्सपेक्ट कि आप $2 बिलियन निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सिग्निफिकेंट एलोकेशन टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो हमें इस बजट में नहीं नजर आ रही। आई विल कम टू नसीर साहब, और एक इम्पॉर्टेंट बात को टच किया शहजाद ने। ही टॉक्ड अबाउट मेक इन पाकिस्तान, ही टॉक्ड अबाउट डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है। हम जब देखते हैं जो हमारा बजट है जनरली, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की डिजिटलाइजेशन के लिए कुछ बजट नज़र आ रहा है जिसमें PITB के 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, क्राइम एनालिटिक्स है, स्मार्ट पॉलिसिंग, उसको जो पंजाब में किया उसको मेरे ख्याल में नेशनल लेके जाना चाह रहे हैं। इसी तरह ई ऑफिस रेप्लिकेशन का है, गवर्नमेंट में ई ऑफिस करेंगे, उसके लिए भी 230 मिलियन का बजट है। तो इस तरह से देयर आर अ फ्यू लाइक ई गवर्नमेंट की हेड्स में थोड़ी सी लोकेशंस हैं। तो इस हवाले से आप बताएं कि डिजिटलाइजेशन ई गवर्नमेंट की बजट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और जो जिस तरीके से वो उस पर काम हो रहा है डिजिटल पाकिस्तान
NITB, PITB, तो उस पे आपका क्या व्यू है? थैंक यू सैयद। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको पिछले 15 से 20 साल का मैं थोड़ा सा एक क्विक व्यू दे दूं। जरूर। That will set our expectations right. Actually, why are we continuing spending time on things which probably are difficult to change? I'm not saying that we should not put in effort, we should not put across our point of view. लेकिन सूरत हाल ये है कि 2002 से I have personally interacted with at least 5 prime minister, about 7 finance minister, about 6 IT ministers, and numerous other departments and Ministry of Commerce and all that. So वो apparently वो textile का जो इनके यहाँ एम्बेड हुआ है ना कि टेक्सटाइल इज द सेक्टर और उसके ऊपर आप इन्वेस्ट किए जाओ। मैंने एक रिपोर्ट रिसर्च बना के दी थी जिसमें which shows that textile sector has bagged over $40 billion in the last 40 years. Last 40 years में $40 billion in shape of cash rewards, incentives, duty drawbacks, special tariffs, gas, electric, ये वो मिला के around $50 billion. तो वो ये चीजें IT में इनको समझ नहीं आ रही हैं, and I'm kind of trying to relate to Indian IT industry. During from 2007 till 2011, we frequently interacted. NASSCOM में हम काफी लोग जाया करते थे, and we used to interact with Wipros and Infosys and all that, and we used to ask them कि यार आपकी क्या वो expectation है आपकी government से? तो they would say कि जी हम they would say हाँ, they would say कि हमने भी काफी सर फोड़े दीवारों के साथ, and eventually we reconcile to the fact that we are not going to get anything from the government, बल्कि वो कह रहे कि जी हमारे लिए तो blessing होगी because Delhi was far away from where the industry was. So their only expectation was कि government हमारे रास्ते में ना आए बस. We don't need anything from them. If they give us way, so maybe I think we need to plan our businesses keeping in view that we are not going to get anything from government and their shrinking budgets and their skyrocketing expenses and losses. We are likely not to get anything. वो जो आप allocations देख रहे हैं, if you convert them into dollar terms, it's a pocket change even for the private companies. TRG probably का budget जो है ना उससे 3 times होगा जो पूरे IT का budget है. So we should not really get into debates कि इस चीज के लिए 200 million रुपए रखे हैं या 400 million रखे हैं. Those are really not worth discussing. Let's focus on things which we can do at our own, and how to convince government not to come in our way and let us do things our own way, and we should align our goals. जब आप कहते हैं कि convince the government not to come in our way, तो उसका क्या मतलब है? कैसे? उसका मतलब ये है कि they should not build roadblocks in our organic or our natural growth. ये IP के issues and other things, ये IP whitelisting, this regulation, that regulation, taxation के confusions, ये वो, अब उन्होंने, I mean, they are gradually realizing, I think, और ये harmonize होना ही होगा. Provincial जो tax वो है GSTs and all that. The good thing is ICT was 5%, पंजाब ने भी 5% कर दिया है, and I think there is a debate going on कि सिंध शायद अगले साल तक वो भी कर दे.
अब ये 18th amendment and all that, those confusions, I don't know how far that battle is going to go, that political जो power sharing और resource sharing की जो बात है, तो इस चक्कर में मेरा ख्याल है कि हमें we should focus more on planning our businesses, investing from within ourselves rather than looking at government to help us or to lend us any help. बाकी ये जो e-government के जो है, जो भी इन्होंने छोटे मोटे रखे हैं, I am of the opinion कि ये उनके अपने ही खर्चे से पूरे हो जाएं तो बेहतर है. वही होगा. I mean, they will hire developers, they will make a few apps. So I think Nasir Saab is traveling on the motorway. One of the things I think the government should be looking at is कि at least motorway के ऊपर you can have a meeting without getting disrupted. So आजकल especially I'm getting this feedback from a lot of companies. Nothing beyond that. So we should think constructive something for ourselves. Thank you, Nasir Saab. So a lot of people are working from remote areas. अपने गांव में जाके, क्योंकि घरों से काम कर रहे हैं, हॉस्टल्स बंद हो गए, और वो जिन जगहों पे गए हैं जहां से बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे मीटिंग भी नहीं हो सकती ऑनलाइन, so they are not able to work for their customers. So one of the things I think government should be looking at. My apology for my apology. I entered from 4G to 3G and toggling in between, so that was disruption. But I think I was able to put across my point of view that we should really. इसी से एक चीज कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि while आपने वो एक पॉइंट रेज किया, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है गवर्नमेंट कंपटीशन के हवाले से. ये क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट कन्विंसिंग द गवर्नमेंट टू स्टिक टू देयर लाइन ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल फौजी फाउंडेशन गेटिंग इनटू IT. So ये जो गवर्नमेंट कंपटीशन है, is this also something that you consider as a roadblock? Absolutely, not only roadblock, बल्कि ये तो opposing force है आपको. Roadblock तो ये होता है ना कि you would be able to cross something. इसमें I think you need to put in a lot of energy to compete with the government because उनका तो वो they are cost centers, they are not profit centers, so they don't really care. So will be facing this more and more. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. Government at one hand for the past 10-15 years, every government comes in and they say कि we will privatize all these loss-making public sector enterprises. उसके statistics ये हैं कि पिछले 10 साल में probably 10 entities privatized हुई हैं. Whereas 450 नई बनी है पिछले 10 साल में, and every day there are new companies being formed by the government, और वो नई दुकानें खुलेंगी, लोगों के वो जो है ना वो उनके अपने बजट्स एलोकेट होंगे and things like that. तो ये फिनोमेना ऐसा है कि बड़ा कोई रेवोल्यूशनरी कोई चेंज ऐसी आएगी तो ये चीजें सीधी होंगी. अदरवाइज I'm not saying that we should sit back, relax and stay quiet. I'm not saying that. But मेरा message है to all our colleagues to build our business plans, to focus on our business models, keeping in view that we are not going to get anything from government. Rather, they would probably be competing us. तो उसके हिसाब से डिजाइन करें अपने businesses को. ठीक है जी. Thank you very much for your insightful talk. I would come to Barkan to connect the entire thing. अभी बजट में जैसे हमने बात की, शहजाद ने कहा कि there's a huge disconnect. गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं होती, आप प्रपोजल बनाते हैं and you have to run from pillar to post, और वो चीज़ सालों you have been trying. आपके टाइम पे बरकान जो अनाउंस हुआ 5% कैश रिवॉर्ड, वो अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आ सका और अभी तक वो बजट में नहीं आया. तो व्हाट हैव यू सीन कि जब चीज़ें प्रपोजल्स आर देयर, गवर्नमेंट नोज व्हाट नीड्स टू बी डन,
और ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी भी डिफाइन की हुई है, एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा इसके ऊपर एम्फसाइज किया। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, ये क्यों इतनी होपलेसनेस डेवलप हो चुकी है और क्यों काम नहीं होते गवर्नमेंट में? जैसे नसीर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट से कोई उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने कैसे की है। जिस तरह फिलीपींस में अगर आप देखें तो फिलीपींस में देयर वाज अ मिनिस्टर हु केम, ही पर्सनली कॉल्ड बिगर कंपनीज कि आप आए, हम आपको यहाँ पे जगह विजिट कराते हैं। दे क्रिएटेड अ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लॉ which was a law in itself जो उन्होंने पास किया, and now we can see that they have a 30 billion dollar industry जो वहाँ पे exist करती है। और $30 billion अगर आप पाकिस्तान के बजट में ऐड कर दें तो इमेजिन के पाकिस्तान के जो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी विल बी। इसी तरह अगर आप इंडिया को देखें तो ऑल्दो नसीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टेड आउट ऑफ द वे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 में एक स्पेशल 90s में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लॉ पास किया था जिसमें बेशुमार बेनिफिट्स, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती लैंड टू द इंडस्ट्री, लॉ के इस सेक्टर के अंदर या जोन के अंदर आप किसी कंपनी को हरास नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आप आए तो पाकिस्तान में इतने बड़े लॉज अप्रूव कराने के लिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। कहा जाता है कि टेक्सटाइल सेक्टर सारा कुछ बजट में से ले जाता है या बेनिफिट ले जाता है, तो टेक्सटाइल सेक्टर वर्क्स ऑन अ स्पेशल मोड जो गवर्नमेंट के साथ सूटेड है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पैसे लो, कैश रिवॉर्ड लो, चीजें लो, टैक्स बेनिफिट लो, दैट्स इट। और उसके लिए एक्सट्रीम लॉबी करो क्योंकि बिजनेसमैन का पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, उसका कैश फ्लो, उसकी बैलेंस शीट अप्रूव होगी, उसको बेनिफिट होगा। वो सारे एज ए लॉबी काम करते हैं एंड दे गेट इट अप्रूव्ड एवरी ईयर। इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से भी कहा जाता है कि वो ये काम करें, लेकिन मसला ये है कि जब तक ये आपके मुल्क के बेनिफिट की चीजें हैं, व्हाई वुड ऑल ऑफ अस स्पेंड टाइम एंड गेट इट डन। और हम कैसे एक एक्ट, अब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का एक्ट पास कराना है, हाउ कैन मी एंड यू एंड शहजाद एंड नदीम एंड नसीर साहब, हाउ कैन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हम वो एक्ट पहले बना के दें, उसके बाद फिर डिफरेंट टू डिफरेंट लोगों के पास जाएं और उन्हें कहें भाई ये पास करा दें हमारे पास। एक बजटरी प्रपोजल हमसे मांगा जाता है कि जी आप बताएं इंडस्ट्री का क्या बेनिफिट है, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है, हवाले कर दिया जाता है कि जी अब आप इस मिनिस्ट्री से डील करें, अब आप प्लानिंग कमीशन में जाके प्रेजेंट करें, जहाँ पे आप ऐसे किस्म के रिमार्क्स सुनते हैं कि आपकी हंसी निकल जाती है। ऐसे ऐसे रिमार्क्स आते हैं जो आप पार्लियामेंट में भी अक्सर सुनते रहते हैं, इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स। तो आप एक फेस करते हैं कि यार ये हम किधर आ गए, किस चीज में। तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्लैग बेरर है, आपकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो आपको गवर्नमेंट से चाहिए, फ्रॉम द टॉप चाहिए। अब वो टॉप जो है वो अगेन सारा कुछ पाकिस्तान का क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग मैन एट द बैक चाहिए, जो कि या तो अगेन मिलिट्री मैन जो आते हैं उनके पास होता है वो एक के वो दे जस्ट उनके आगे कोई बोलता नहीं है, या आपको डिफरेंट मिनिस्टर्स में या नजर आ जाता है कि उनके आगे ब्यूरोक्रेसी में कोई बोलता नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर से ला के ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि इनसे बस आप डील करो, इनसे आप करवा लो जो करवाना है। और उसका एंड रिजल्ट वही है जो आज हमारे पास 1.5 साल हो गए हम गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट गवर्नमेंट के साथ हमने डील किया तो लास्ट गवर्नमेंट में वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर, ऑल्दो शी हैड certain areas she could very well work, but she used to run from ministry to ministry and prime minister के जी ये काम मुझे चाहिए, and prime minister gave her the vision कि जी आप हमें ये करके दें and whatever you need I will provide you। यहाँ पे ये है कि आपके मिनिस्टर जो हैं ऑलमोस्ट मिसिंग है इन एक्शन। जो आप बाकी, एक तो आप इतने सारे लोग ले आए हैं, एक डिजिटल पाकिस्तान है, एक और भी डिजिटल पाकिस्तान, 2 डिजिटल पाकिस्तान में रन हो रहे हैं, तो उन लोगों की भी इंडस्ट्री की ओनरशिप ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अभी तक उनमें से जो हैं वो लोग मिले भी नहीं है इंडस्ट्री से, एक दूसरे से भी नहीं मिलते, तो हमसे तो मिलना जो है वो दूर की बात है। तो आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है जिसको आप जाके कहें कि भाई मुझे ये चाहिए। अब मैं नाम ले लूं कि अगर मैं कहूं कि जी स्ट्रॉन्ग बंदा क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बंदा ऐसा बंदा होता है जिसके सामने कोई ब्यूरोक्रेट बोले ना। हमें प्राइवेट सेक्टर से बुला के, हमसे प्रपोजल्स बनवा के, पाशा से बुलवा के, अगेन हम में से कोई बिलियनियर्स नहीं है कि हम लैंड क्रूजर्स में जाके, हमारे अपने ताल्लुकात नहीं है मिनिस्टर से, डेफिनेटली कुछ लोगों के होंगे लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस तरह कैप्टन है कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलते हैं।
एंड दे कीप राइटिंग, दे कीप पुशिंग, एंड वो मिलते हैं जाके। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें कहा जाता है हम छोटी इंडस्ट्री के हैं, आई बिलोंग टू SME सेक्टर। हमसे एक तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम टाइम दें, उसके बाद हमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट में हमें कोई स्ट्रांग मैन नहीं दिया गया कि जी, क्योंकि अगर आपने मुल्क को बढ़ाना है आपको लॉस पास करने पड़ेंगे, आपको IT इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इस वक्त 23 इदारे हैं जो गवर्नमेंट, जो IT इंडस्ट्री के रास्ते में ब्लॉकेज है। आपका EOBI के इंस्पेक्टर से लेके, आपके वर्कर वेलफेयर फंड के इंस्पेक्टर से लेके, आपके, अगर आप करीम चलाने लगे हैं तो आप करीम अगर आपने खोली, इमेजिन हैविंग करीम इन पाकिस्तान, आपके कोई सर्वर उठा के ले जाएगा, आपके टैक्सी ड्राइवर को कोई रोड पे ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे $1 बिलियन कंपनी बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज इतने ब्लॉकर्स हैं कि एवरीबॉडी विल ट्राई टू कम एट यू। तो आपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देनी है, वो कैसे आएगी? वो उसके लिए आपको विजन चाहिए। आपने बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान लेके आना है, उसके लिए वो कंपनीज कहती हैं कि भाई मेरे पे कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट। आप देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में मिनिस्टर्स खुद जाके पिच कर रहे होते हैं बड़ी कंपनीज के सामने कि आप 80,000 जॉब्स यहाँ पे लेके आए, वी विल फैसिलिटेट यू। पाकिस्तान में यहाँ पे सिनेरियो तो इसमें बरकान ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ऑफ कोर्स दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन पुट टू द गवर्नमेंट, तो और गवर्नमेंट में स्पेशल इदारे हैं इस काम को देखने के लिए बनाए हुए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए या इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। वो इदारे क्या कर रहे हैं? आर दे नॉट लिसनिंग, या उनको समझ नहीं आती बात की, या वो कर नहीं पाते, उनकी पावर नहीं है? क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है उसमें? पावर का तो मसला ये है कि गवर्नमेंट का, दूसरा मसला ये है कि गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर से जो लोग आए हुए हैं, एक्चुअली वी हैव सीन कि दे समटाइम बिकम द प्रॉब्लम एज वेल। वो उनकी 10-10 साल 20-20 साल से नौकरियां चल रही हैं, दे डोंट केयर एंड दे आर जस्ट सिटिंग देयर। तो गवर्नमेंट एक्चुअली, अगर अब अगेन वी आर नॉट गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, बट गवर्नमेंट के साथ काम कर करके आपको पता लग जाता है कि यार ये जो लोग हैं ये दे आर जस्ट सिटिंग देयर, एंड वो गवर्नमेंट में उनकी जॉब है पक्की, एंड दे आर जस्ट बेसिकली वो 5-10 साल हो गए हैं, दे हैव नो इंसेंटिव, नो मोटिवेशन टू डू एनीथिंग। तो आप कोई रोटेशन का मैकेनिज्म लेके आए ताकि ये लोग रिप्लेस होते रहे, उनके पास कोई इंसेंटिव हो कि ये लोग चेंज हो। तो एक्चुअली वी हैव सीन कि these people who are coming from the bureaucracy, तो दूर की बात है ना, bureaucracy we have seen more support from them. These people actually become a hurdle, they lobby against you to not get your things done, बल्कि they are kind of anti-industry. So that is यानी a problem. जो इदारे एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए बने हुए हैं, वही आपको बजाय आपके लिए काम करने के आपके रास्ते में हर्डल हैं, and their incentive and motivation is not to work for the industry, but they work for themselves. I will move to before coming to Shahzad and continuing this discussion. मैं एक क्वेश्चन है and I would like to ask from Nadeem because इसका ताल्लुक उन्होंने BPO के हवाले से भी किया है। तो someone has asked के how do you see, आपका मेरे ख्याल में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से भी रिलेशन रहा है। They say कि how do you see latest Trump take on stop the outsourcing? What impact come to the BPO and call centers and even software houses? Before I go to that question, I just want to chime in. I think on the discussion on the budget, I think Nasir Saab, myself, Syed, we worked with successive governments, right? In the last like 15 years. So हमने ये Syed Saab जो अपना Nasir Saab बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. So I think बात वही हो जाती है, and I reiterate what he's saying is that we're a small industry, right? The figures we have are though our growth is very impressive, our figures are not large enough to impress the government in many ways, right? And when it comes to making policy, particularly अगर हम political governments को देखें ना, तो उनकी thinking अगर हम देखें, और ये हमने ये problem देखा है पिछले 15 साल से, right? तो वो problem यही है कि they are short term. I mean वो कहते हैं सर quick wins हमें बताइए कि आज हम कुछ करें और कल exports जो है वो double हो जाएं. अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल वाले तो उनको ये टेम्परेरी तौर पे अपने बायर को इंसेंटिव दे के अपने जेब से, गवर्नमेंट से पैसे लेके उसमें से आधे जेब में डाल के आधे अपने बायर को दे के और एक्सपोर्ट टेम्परेरी तौर पे बढ़ा देते हैं. बट हम क्या करेंगे, राइट? वी आर नॉट इन दैट पोजीशन to do. So we have to recognize that fact, right? कि and then we also don't have much data, right? When we go there, सैयद आप ही कह रहे थे कितनी कंपनीज हैं, 50,000 है, 100,000 है.
कितने लोग एम्प्लॉय हम लोग करते हैं, क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर। एंड देन द बिगर थिंग वी हैव टू रियलाइज कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगा बीपीओ का, इट्स अ डिमांड ड्रिवन प्रॉब्लम, राइट? वी हैड इश्यूज attracting large customers or large companies to come and work with us as clients. तो वो तो एक issue है, right? And that is not an issue that can resolve overnight, right? उसमें अगर government बहुत कुछ effort करे तो 5 से 7 साल लगेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता करके improve करने के लिए. So I think ये एक सारा context है जो हमें realism जो कहते हैं ना, तो I think realistically after having seen all of that, so I think whatever we do, I'm not going to go further and comment on what we should do, but I think whatever we do has to be, you have to keep that in mind, right? In terms of where where this thing going. अच्छा, जो दूसरा बीपीओ का सवाल है, देखें, we have seen this in every election year, right? Every election year from Trump to Obama to going as far back as Clinton. I think this has been an issue. The government in the US always raises this lots of hue and cry कि BPO jobs ये कर देंगे, होता वगैरह कुछ नहीं है, right? At the end of the day, it just sort of dissipates. देखें, इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो offshore services हो रही हैं, an interesting fact is कि जो offshore services हो रही हैं उसमें से 70% वो services हैं जो large American companies अपने outsource centers से कर रहे हैं. General Electric is doing that service from India through Genpact. Citibank is doing it from from its back office in India. Similarly, AT&T is doing it out of its call centers in the Philippines. United Airlines is doing it. So they are the biggest beneficiaries of this thing, right? And if you look at corporate America deep down, all the cost savings are they are the biggest beneficiaries of all these cost savings. So they will never let it happen. और ये मैंने बहुत दफा देखा है पिछले 15 साल से. I've been asked this question again and again every election year कि Obama will do this or Trump will do that. Nothing will happen. I think business as usual. I don't think there's any impact whatsoever. I mean, again, it's an election year, it will come and go. BPO, I think, remains there is optimism in BPO. It continues to move towards outsourcing, and even large companies are now moving from in-house to outsourcing models. So I think I'm very optimistic that the business growth will continue. ठीक है जी. सो फैसल साहब, घबराने की जरूरत नहीं. ट्रम्प से ये इलेक्शन हो जाएगा, थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल. सो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम अमारा, आपने मेंशन किया था कि लोकल जैसे टैक्सेस हैं, लोकल जो अप्लाई हो रहे हैं टैक्सेस देयर, वो एक्सपोर्टर्स फैसिलिटेट हो रहे हैं, मगर लोकल कंपनीज को उस तरह की फैसिलिटेशंस नहीं मिल रही. तो आई वुड लाइक टू फर्दर, क्योंकि आगे मैंने एक सवाल फर्दर भी मेक इन पाकिस्तान के हवाले से भी है, सो शहजाद से. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा है? व्हाई डू द सर्विसेज कंपनीज या आईटी की जो हमारी कंपनी है वो स्केल नहीं कर पा रही, ग्रो नहीं कर पा रही? और जैसे नसीर साहब ने कहा, हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद अपने बिजनेस प्लान्स को देखें और व्हाट वी कैन डू. मगर आपको क्या नज़र आता है कि क्या लैकिंग है? पॉलिसी हर्डल्स हैं, रास्ते में गवर्नमेंट है, या कोई ब्रांड पाकिस्तान के इश्यूज हैं, लोकली काम नहीं मिलता, सेल्स के इश्यूज हैं? व्हाट आर द की ब्लॉकर्स क्या हैं? कैसे ग्रो करें कंपनियां और क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? Yeah, so I think I would say कि जो biggest hurdle is on the human resource side, right? So we don't have enough talent. अब जो ये नदीम साहब बात कर रहे हैं कि जो बड़ी companies हैं like TRG and some of the others, इनके पास भी मतलब if you look at the numbers, they're not even the smallest of the Indian or Chinese or other Philippine related companies, right? So इसमें हमें ये देखना है कि जो investment जो budget में जानी चाहिए वो, और I think मुशर्रफ के ज़माने में कुछ इस के तहत हुआ था काम, which was that there was a lot of money being put into education, vocational training in IT, having people learn programming and some of these areas which had a short-term effect. ठीक है, फिर उसमें हर गवर्नमेंट ये सोचती है कि मैं थोड़े साल के लिए हूँ तो मुझे भी short-term wins देखने हैं. तो
तो इसमें कुछ जो चीज़ें शॉर्ट टर्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और दूसरी जो चीज़ें लॉन्ग टर्म करनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑन हाउ डू वी रिजॉल्व दिस इशू ऑफ क्रिएटिंग मोर टैलेंट which will come about. So one is that. The other is कि जैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि लोकल काम बढ़े ताकि हमारा एक्सपीरियंस बिल्ड हो। हमें क्या होता है जब हम मार्केट करने के लिए जाते हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल वाटर्स, तो वो हमसे कहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस दिखाएं, और पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ इन वेरी फ्यू सेक्टर्स। सो उसमें एक डिफ़िकल्टी आ जाती है कि स्केल हम नहीं दिखा सकते कि भाई हम ये बहुत सारा काम और ये टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है जो लोकल एक्सपीरियंस के हैं, जो इंडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा मौजूद है। और आई थिंक तीसरी चीज़ जो एक हर्डल बन जाती है इज़ अगेन द मार्केटेबिलिटी, और इस पे भी बहुत काम हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज ऑन द अदर साइड, आई वाज बेस्ड इन द यूएस and I was procuring services from Pakistan, and there was a lot of work which was being done in terms of creating a brand for Pakistan. But creation of the brand for Pakistan in a certain industry has to be long term. It cannot be कि government to government वो change होना शुरू हो जाए और inconsistent हो जाए कि एक साल बजट में है दूसरे साल नहीं है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब there are very minimal figures in the budget currently for doing marketing in terms of Pakistan. I think one good organization is this PSEB, जो मतलब initiatives लेती रहती है in terms of creating marketability for Pakistan and invites private companies and local companies to go and be present. बट इतना वो कंटेक्चुअलाइज नहीं होता और वो एक जनरल होता है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे होता है और उसमें बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नॉट डन एज अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी अलाइंड विद डिफरेंट कंपनीज, इट्स जस्ट डन एज अ स्पेंड ऑफ द फंड दैट इज बीन गिवन टू देम। सो उन चीज़ों में आई थिंक थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अच्छा, सो शहजाद, आई थिंक हमारा 3 पॉइंट्स जो रेज किए इंटरेस्टिंगली, दे कनेक्ट टू व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज। शी टॉक्ड अबाउट के वोकेशनल टैलेंट का मसला है, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम होने चाहिए जैसे मुशर्रफ दौर में थे, whereas we even though we see a lot of vocational training happening, जैसे प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव से लेकर ऑल द वे टू ऐसा ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत ढेर सारा, बल्कि मैं तो वो देख के परेशान हो गया था, द अमाउंट ऑफ नंबर्स गोइंग इनटू जनरली दोज प्रोग्राम्स, मगर somehow वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो द वे प्रॉब्ली दैट्स बीइंग डन। सिमिलरली उन्होंने कहा कि बाहर जाके पोर्टफोलियो दिखाना होता है, काम नहीं होता यहाँ पे। जो आपको एक कोई काम करना है, जैसे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लेंट ऐप है, अगर एक हमारा की कंपनी हैज डेवलप्ड दैट ऐप एंड शी कैन शो कि मेरी ऐप को 10 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के, या 5 मिलियन यूजर यूज कर रहे हैं, तो दैट वुड होल्ड एज अ गुड इनफ प्रोफाइल के उसकी बेस पे वो सेल कर सकती हैं। मगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर प्रॉबेबली नहीं हो रहे होते, कंपनीज की एक्सेस में नहीं होते। और इसी तरह वो जो मार्केटिंग का उन्होंने बताया कि PSEB कर तो रही है मार्केटिंग, मगर वो somehow it's not connecting। तो seems like कि चैंपियंस बहुत सारे हैं, जैसे बरकान ने भी बात की, प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव्स भी चल रही हैं, NITB भी है, PSEB भी है, IT मिनिस्ट्री भी है, डॉक्टर ताउर रहमान भी कर रहे हैं, there's like so many players, और ये तो भी मतलब दिस लाइक जस्ट हैंडफुल, इससे भी मगर कोई बात नहीं बन रही, मसले नहीं हल हो रहे। वो डिजिटल पाकिस्तान की बात तो हो रही है, मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये व्हाट्स रॉन्ग, ये मॉडल का मसला है, द थिंकिंग का मसला है, द वे दे आर वर्किंग, क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है? अगर डिजिटल पाकिस्तान की बात है तो उसमें व्हाई डज दैट नॉट रिफ्लेक्ट ऑन हमारी जो एक्सपोर्ट्स है या इस तरह की डायरेक्शन है? जी, मेरा ये ख्याल है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, मसला हर एरिया के अंदर है। तो जो मसला है वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई भी एक एरिया है जो बहुत सही चल रहा है, बाकी एरियाज आर फेलिंग टू सपोर्ट इट। सो
it may look inappropriate, लेकिन I honestly at times think कि IT is now a fashion statement. Everybody wants to make fashion statement कि IT करना चाहिए, AI करना चाहिए, blockchain करना चाहिए, लेकिन आप फिर ये कहते हैं कि ठीक है करना चाहिए, फिर आप ये भी कहते हैं कि जी मुझे डिजिटल पाकिस्तान करना है, so put the cash where the mouth is. फिर आप कहें कि जी we are creating this project which is blockchain based, let's say land record management. ये मेरे पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनको मैं एलिवेट भी करूंगा इन द कैपेसिटी, उनको मैं एंगेज भी करूंगा और उनसे मैं काम भी कराऊंगा. सो पाकिस्तान में मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं, या तो हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं कि हम कहते हैं कि जी वो एकेडमिया को फंड करो, उनको सपोर्ट करो, या हम कहते हैं बिल्कुल स्टार्टअप के लिए कुछ इशू कर दो. जो सेक्टर बीच में आज के दिन एक्सपोर्ट्स लेकर आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो आपका पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ पर आप कहते हैं कि जी 40 मिलियन रुपए हैं आपके एक्सपोर्ट की सपोर्ट फंड के लिए. सो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अलाइनमेंट का बड़ा एक सिग्निफिकेंट इशू है. और कई दफ़ा हमें ये फीलिंग आती है कि जब सेक्टर जाके कहते हैं, और हम सब लोग इस चेयरमैन की कैपेसिटी में जो काम करते हैं, वी आर वेरी 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 अनबायस्ड. हमारा कोई ताल्लुक हमारी कंपनी के इंटरेस्ट से नहीं होता. मेरे साथ नदीम भाई कई दफ़ा हम लोग मीटिंग में जाके लॉकडाउन में मास्क पहन के बैठे होते हैं, बिल्डिंग में सेक्रेटेरिएट की. इट इज़ एन इंडस्ट्री बेनिफिट. इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम सब बेनिफिट करेंगे, गवर्नमेंट बेनिफिट करेगी, लेकिन शायद समझा जाता है कि शायद ये हम अपने लिए कर रहे हैं. तो जब हम अपने लिए नहीं कर रहे होते तो वी कांट रियली, इट्स नॉट रियली बिजनेस इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं कि मैं कंपनी के फंड लेके मैं यहाँ लगा दूंगा और मैं बैठ के जो है वो उन तमाम प्रोसीजर्स पे काम करूंगा. हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. दैट्स अ बिग इशू. सो एक तो ये कि ओवरऑल कोई भी एक काम पिक करें, लेकिन उसको उस पर रिसोर्सेज एलोकेट करें और उसको अथॉरिटी दे दें. जो बात बरकान ने भी कही थी, इस वक्त जो अप्रूवल प्रोसेस है वो इट्स अ क्वागमायर. आपको नहीं पता होता अप्रूवल किसने देना है. मैं जिससे बात कर रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से, वो मेरे साथ बड़े तरीके से बातचीत भी कर रहा है, सुन भी रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी ले रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो असल में इनके पास जाना चाहिए था. इट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेज. सो एट टाइम्स वी डू नॉट इवन नो कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्रोसेस. जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी हो, वो हमें कहे कि देखें जी अगर आपके ये कंसर्न्स हैं या ये सिचुएशन है, आप इनके पास आइए. दे आर द वन स्टॉप शॉप. दे विल एंटरटेन यू. आपके साथ आपके रिकमेंडेशन समझेंगे या आपके कंसर्न्स को समझेंगे. उसके बाद गवर्नमेंट की इंटरनल जो भी प्रोसेसिंग है वो इनकी प्रॉब्लम है. कोई रिसर्च करना है, कोई डेटा लेकर आना है. मतलब दुख उस वक्त होता है जब हमें मिनिस्ट्री ये कहती है कि आप हमें डेटा ला के दे दें. हम कहते हैं ये डेटा तो स्टेट बैंक के पास भी होगा, SECP के पास भी होगा, आपके पास FBR के पास भी होगा. अगर मैं एज अ सेक्टर जाके डेटा लाना शुरू कर दूं तो हाउ मच टाइम विल इट टेक? यू ऑलरेडी हैव डेटा अवेलेबल. सो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं, एक तो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत वीक है. वन. दूसरी बात, ये जो पूरे अप्रूवल साइकिल है, ये कहीं पर इसको कोई ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर रहा. तो आप एक के पास, सो यू डू नॉट नो द स्टेजेस टू इट. सो यू कांट डिटेक्ट, यू कांट फोरसी कि यार मैं स्टेज 1 पे खड़ा हूँ और स्टेज 2 पे ये, स्टेज 3 पे ये, स्टेज 4 ये. अनलेस के नसीर साहब जैसे कह रहे हैं कि जी मैंने 15 साल लगा लिए हैं, अब मैं बता सकता हूँ कि 15 स्टेजेस क्या होंगे. सो हर बंदा 15 साल लगाएगा, उसके बाद वो कहेगा कि जी गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ना मांगे, अपना बिजनेस अपने मॉडल पे चलाएं. जिसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ है जो 10-12% पे चल रही है, ये चलती रहेगी. हम फिर इवेंचुअली 2 साल बाद कह रहे होंगे यार ये बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया. फिर हम कहेंगे देखें जी ये तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं. हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा कंसर्न ये था कि देखें जी समझें पाकिस्तान में बड़े मसले हैं. हम ये देखें कि अगर हम एज अ कंपनी, पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी बैठी हुई है, व्हाई विल इट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? उसके पास तो ऑप्शन है वो ऑफशोरिंग का, फिलीपींस में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वियतनाम, कहीं भी, सिंगापुर, कहीं भी जाके ऑफशोर काम दे सकती है. पाकिस्तान में काम क्यों देगी? ये तो मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, हुकूमत पाकिस्तान का, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है टू ओन इट. ये मेरी आपकी सर्टेनली सम सपोर्ट दे सकते हैं, वरना जो नसीर साहब कह रहे हैं वही काम करते रहेंगे. हम आहिस्ता चलते रहेंगे. हम बड़े खुश होंगे कि जी मैंने अपनी कंपनी डबल कर ली 10 सालों में. हो सकता है द पोटेंशियल वाज टू मेक इट 50 टाइम्स बिगर इन द पास्ट 10 years. तो डिजिटल पाकिस्तान की अगर मैं बात ले लूं, डिजिटल पाकिस्तान पाकिस्तान ने किया, बड़ा जबरदस्त काम किया. ये काम तो 4 साल पहले बांग्लादेश और इंडिया शुरू कर चुके हैं. पाकिस्तान की 2018 में इसकी पूरी वो पॉलिसी आ चुकी है. बजट किधर है? वो स्ट्रैटेजी किधर है? वो स्टेजेस किधर हैं? वो कोलैबोरेशन किधर है? अभी आपको मिसाल देता हूँ. पिछले 6-8 महीने से बात शुरू हुई है ई-कॉमर्स के ऊपर. कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुरू की है. अगेन रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह इज बीन फिनोमिनल.
उनके अंडर में चीज शुरू हुई, जबरदस्त जा रही है। उसमें NECC बन गया, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बन गया, उसमें प्रॉपर मीटिंग हो रही है, उसमें SEC को एंगेज कर लिया गया, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री एज द फोकल मिनिस्ट्री सो पावरफुल कि वो चीजों को मूव कर पा रही है, ठीक है। लेकिन वो भी इस बजट में कोई ऐसे कंसेशन नहीं ला पाई जिसकी वजह से ई-कॉमर्स ग्रो करेगा। पंजाब ने एक बेसिकली 5% की बात की है, दैट आल्सो हैज टू बी सीन कि हाउ मच विल इट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स पे टैक्स कम हो जाता है। हमारा पॉइंट से देखें ये है कि अगर इंडस्ट्री काम करेगी तो अपने पेस पे काम करेगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ लेकर आएगी। गवर्नमेंट अगर काम करेगी तो इट कैन बेसिकली मल्टीप्लाई द स्पीड बाय 5 to 10x। हम नहीं चाहते हम हर साल आके बैठे हम कहें कि यार ठीक है, मतलब क्योंकि हम हैं पाकिस्तान में तो यहीं पे बैठे हुए हैं। अगर मैं सिंगापुर में पाकिस्तानी होता तो क्या मैं पैसा यहाँ में डालता? अभी सैयद आप मेरे साथ कॉल पे थे, हमारी जो कॉल हुई थी एक US में पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ, उनका ये कहना था और बड़ा शर्मिंदगी हुई थी, उनका ये कहना था कि जी मैं पाकिस्तान में चैरिटी तो कर सकता हूँ, बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके यहाँ जो है आपके यहाँ वॉइस फोन बंद कर दिया जाता है घरों से। दुनिया लॉकडाउन में आपके प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होते, आप नए नए किस्म के टैक्सेस ला रहे हैं, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ रहे हैं। सो पाकिस्तान हैज टू बी ग्लोबली कंपेटिटिव। हमें देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जहां पर आप काम ऑफशोर या आउटसोर्स कर सकते हैं। आर वी कंपेटिटिव इनफ? और ये काम गवर्नमेंट का हमसे ज्यादा है। हम तो शायद चले जैसा भी टूटा फूटा काम चलाते रहेंगे, लेकिन हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट एट द वेरी टॉप ओन्स इट, क्रिएट्स अ स्ट्रेटजी, एलोकेट्स द बजट। जिस तरह से बजट बनाया गया कि जी हम लोगों को मोटरवे बनानी है, उसके लिए फिर आप फंड भी लेते हैं, सारा काम करते हैं, फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इज द बिगेस्ट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द नेक्स्ट 10 years। सर्विसेज में सबसे ज्यादा पैसे बनने हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बनने। आई फुली एग्री विद नसीर साहब। उसके लिए सिवाय ख्वाहिशात के और डिमांड्स के हमें कोई बहुत ज्यादा नजर। सही, आप मुझे बताएं, आप टास्क फोर्स में काफी एक्टिव हैं, डिजिटल पाकिस्तान के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया? जब पैसा एलोकेट नहीं किया जाता तो फिर आप जाते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पास। उसमें चैलेंज ये आता है कि फिर आप उसमें इस तरह के टर्म्स बनाते हैं, क्योंकि द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज सो बिग कि लोकल कंपनी उन टर्म्स पे काम नहीं कर सकती। फिर या तो उसके अंदर कोई बाहर के वेंडर्स आते हैं जिनको बाहर के बैंक्स जो है वो फंड करते हैं और वो यहाँ पर आके काम कर देते हैं। और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो हम छोटे छोटे काम जो होते हैं कुछ लाख रुपए के, वो हम करते रहते हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम which I think needs to be at work in harmony, synchronization, जिसमें procedures हैं, policies हैं, ownership है, budget allocation है। जब ये सारी चीजें साथ काम करेंगी in a proper coordination, Pakistan can certainly achieve $20 million in 5 years. But the way we are going, we at best can get to $5 billion formal. Thank you, But जी. this and this is very painful, by the way, very very painful remark जो मैं दे रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन I think I have to be blunt about it. Thank you, Shahzad. I have a very quick question जो कि मैं I would want के quickly answer अगर दें नदीम साहब भी और नसीर साहब भी, कि आपकी experience में तीन गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, from a budget point of view, from IT boards and the tax agencies, आपके ख्याल में तीनों में से कोई बेहतर डायरेक्शन में है? कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और किससे आपको कोई फिलहाल कोई ज्यादा होप नहीं है? आपका क्या एनालिसिस है तीनों को जब आप आपस में कंपेयर करते हैं? Nasir, you want to go first? हाँ जी, I think we have been continuously pursuing SRB, इधर PRA में भी वो करते रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फाइनली, आई थिंक पिछले साल भी उन्होंने एक स्टेप लिया था, एटलीस्ट उन्होंने इंटरनेट और ये वो इस तरह की सर्विसेज पे जीरो रेट कर दिया था। इस दफा उन्होंने IT enabled सर्विसेज और IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, इसके ऊपर उन्होंने 5% कर दिया है जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है। सो दैट्स अ गुड बिगिनिंग। और वो उन्होंने प्रोबेबली ड्रॉ डाउन किया है जो ICT ने लास्ट ईयर किया था 5%, तो उन्होंने भी वो कर दिया है। तो सिंध SRB का पता नहीं आपकी लेटेस्ट I can comment on the. सुनी है उनसे?
जी नसीर साहब का सिग्नल अभी फिर वीक हो रहे हैं, तो नदीम I'll साहब से pick up. पूछना। I'll pick up on what he's saying. देखिए, अब इसमें fundamentally I think so I'll go ahead. हाँ सैयद, जी 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 प्लीज। देखिए इसमें जो मैंने जो देखा और जो एक्सपीरियंस किया है इसमें, देखें जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है या विजन होती है वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ड्राइव करती है। सो टैक्स कलेक्टर से, पीआरए से या एसआरबी से एक्सपेक्ट करना वो आपको सिंपैथेटिकली आपके इश्यूज को सॉल्व करेंगे, देखिए वो उनका काम नहीं है। देर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे या तैसे टैक्स कलेक्ट करना है, चाहे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उससे, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है, किसी को तकलीफ होती है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने अपना टारगेट मीट करना है, राइट। सो आई थिंक अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे पीआरए में, एफबीआर में और एसआरबी में कोई खास फर्क नहीं लगता, राइट। पंजाब का जो शुरू से एडवांटेज ये रहा है कि पंजाब में over the years PITB had become sort of the a little bit sort of the lobbying of the industry, and through them the industry was able to push a lot of things through, right. And over time the bureaucracy in Punjab has kind of picked on that. So not PRA, ne nahi ki. This has happened from other sources. Somebody else has pushed it down and it has happened. अच्छा, अब सिंध में इशू ये है कि it is not a good situation because in fact you will all be surprised कि अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं सिंध से। अगर आप IT इनेबल्ड सर्विसेज, BPO या कॉल सेंटर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो 3% आपको अपने रेवेन्यू पे टैक्स देना होता है, जो आप अपनी जेब से देंगे। और ये आज से नहीं, ये पिछले मेरा ख्याल में 8 से 10 साल से है। इसके अलावा अगर कोई और IT इनेबल्ड सर्विस आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सर्विसेज कर रहे हैं, तो उस पर आपको 13% टैक्स देना है। And over the last 5 years, we've been, banging doors of the Sindh government, trying to explain to them कि this is, first of all, इस पे dispute है कि ये आपकी territory भी है या नहीं, right? चलें, अगर है भी या नहीं भी है, तो कम से कम आप इसको ये तो देखें ना कि most of the jobs are being created in Punjab and other provinces. तो इसको आप हटा दें या इसको आप देखें इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है। लेकिन वो आज तक जो है वो बात उनकी समझ में या आती है। आई थिंक दे हैव बीन रिसेप्टिव। अभी हम उनसे कई दफ़ा मिले हैं, शहजाद, माई सेल्फ एंड अदर्स, वी मेट सीनियर पीपल, बट आई थिंक वो इफेक्टिविटी नहीं है। सो आई थिंक बात ये है कि हमें एज पाशा वी नीड टू होल्ड द पॉलिटिशियंस टू अकाउंट, राइट। ब्लेमिंग SRB or blaming PRA is not the solution. And PRA का advantage है because you had Umar Saif and others in PITB, Shahbaz Sharif tha, you were able to access, or through that we were able to drive changes in policy. अब सिंध में कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं हो रहा। फेडरल में तो बहुत, it's a very small, so you go to FBR and you get things, you talk to them. So I think the policy makers are the political governments, and they have to be held to account, right? And we have to continue to use the Pasha platform to raise that again and again कि भाई आप deliver नहीं कर रहे ये services। ये तो simple सी बात है ना कि भाई IT अगर मैं export कर रहा हूँ तो मुझसे किस बात का आप tax ले रहे हैं, right? But unfortunately वो it's very frustrating, I think, because we have और बात यही आ जाती है कि they onus then turns to you and they tell you कि अच्छा आप ये data ले आएं, आप वो data ले आएं, आप अपने जो top 10 exporters हैं उनकी list ले आएं, उनके वो NTN नंबर, भाई हमारा तो नहीं है ना काम। So I think ठीक है, but policy makers को हमें push करना है। We have to use the Pasha platform and we have to hold them accountable. So the PPP government is absolutely accountable for what is happening here, and jobs will not be created in Sindh. I can vouch for that in the BPO industry at least. ठीक है, so I think that's my view on this. ठीक है। सो इसी को मैं जरा शहजाद, अब हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो 2 मिनट में अगर जो नदीम ने बात की कि पॉलिटिशियंस हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन इसलिए ट्रिकी है कि एक हमारे पास जो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन, PTI के पॉलिटिशियंस हैं, उनके इत्तेहादी हैं, MQM के पॉलिटिशियंस हैं। सो IT मिनिस्ट्री के हवाले से भी किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि डू वी नीड अ न्यू IT मिनिस्टर, हाउ डू वी गो अबाउट चेंजिंग देम। आपका हाउ डू यू प्लान टू, अब इतनी थोड़ा सा नसीर साहब ने बात की कि कोई थोड़ी सी नाउमीदी विद द गवर्नमेंट,
and Nadeem Saab rightly saying कि जी you should hold them to accountable. What's the plan कि पाशा कैसे करेगी, अब आगे क्या करेगी, अब इन्होंने नहीं माना, how do you as an industry leader, पाशा leader, plan to kind of do that and make them realize about their job? देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो सही बात है वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट नहीं की। सो सिंध गवर्नमेंट की बात ले लें या हम फेडरल बात ले लें, दे डू अग्री टू इट, देर ऑल वेरी, मैंने कहा ना लोगों में एक सिंसियरेबल डिजायर है कि चीज़ें सही हो और उनको बात समझ भी आती है। तो मेरे ख्याल में हमने जो बहुत सारी बातें की थी, STC की बात हम लोगों ने की, हमने जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड की बात की, हमने बाकी बातें की, 3% पेमेंट टैक्स की बात की। वी हैव कवर्ड सर्टन स्टेजेस। मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत लंबा साइकिल है। सो क्योंकि अब हम थोड़ा सीख गए हैं, थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट भी सीख गई है। अगर ये गवर्नमेंट और ये लोग चेंज नहीं होते, थोड़ा सा ये बड़ा जरूरी है। नसीर साहब कह रहे हैं कि हम 15 साल से सीख रहे हैं और हमने अभी तक ये सीखा कि कुछ भी नहीं होगा। नहीं चले, मतलब मैं अगर होप की बात करूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पेशली जैसे हमारे IT सेक्रेटरी साहब हैं, शुएब सिद्दीकी साहब, जबरदस्त आदमी है, एवरी टाइम अवेलेबल। मतलब मेरे ख्याल में वो जो है नदीम भाइयों, मैं हूँ, ही इज जस्ट अ कॉल अवे रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ द डे एंड डे ऑफ द वीक। मैंने कहा लोग अच्छे हैं, हमने कुछ सीख लिया है, शायद उन्होंने भी सीख लिया है, क्योंकि वो सब भी बहुत अरसे से नहीं IT मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। सो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आई एम वेरी होपफुल। द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे इरिटेंट्स हैं और इतना लंबा प्रोसेस है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। तो जो चीज़ 1 महीने में होनी थी वो 2 साल में होगी। तो जो ख्वाब आपने 5 साल में देखे थे वो 25 साल में होंगे। और 25 साल में इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है, सो यू कैन डिस्काउंट द सक्सेस बाय दैट ट्रेड। उसके अलावा जाहिर है वो अभी हम काम कर रहे हैं, वी कंटिन्यू टू क्रिएट अवेयरनेस। इस वक्त मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट भी हूँ, उसमें ये मुसलसल बातें कर रहे हैं। सो वी हैव मेड अवेयर प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, IT, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आज नसीर साहब की भी मुलाकात थी कॉमर्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर साहब के साथ, सबको कम से कम अवेयरनेस है। जिस चीज की कमी है वो एक ऐसी अथॉरिटी की कमी है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी हो प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, जो हमारी बात समझने के बाद उसको इंटरनल प्रोसेस कर ले। अगर ये नहीं होगा तो चाहे उसमें 10 चीजों में से शायद वक्त लगेगा, कुछ चीजें होंगी, कुछ लोग आपको डिसहार्ट होकर छोड़ देंगे और इवेंचुअली होगा कि जी पाशा ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, हम कहेंगे ठीक है, देयर इज अ वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम एंड कैपेसिटी एंड पैशन, वो खत्म हो गया पैशन, वी हैव टू सर्व आवर ओन बिजनेसेस। लेकिन मैं पुरउम्मीद हूं कि अब जो चीज नहीं हुई थी वो इस 1 साल में वो तो कम से कम हम कंक्लूड इंशाल्लाह कर ही लेंगे। लेकिन I think we could have done 5x. Yeah. So just one point on Pasha. I think one thing that we have all been former chairman. I think we still need to continue to work on bolstering the secretariat. I think ये एक issue रहा है. We have solved that problem. We had somebody in Islamabad. देखें, alhamdulillah, industry has been growing. Resources भी हैं, companies भी हैं, आपके members में अच्छी खासी बड़ी companies भी हैं. तो उसमें प्लीज जरूर एफर्ट लगाएं और अपने सेक्रेटेरिएट को मजबूत करें, उसके अंदर अच्छे रिसोर्सेज लाएं जो फिर आपके लिए लॉबी भी करें, कुछ रिसर्च छोटी मोटी भी कर लें। तो ये बड़ा जरूरी है। आई थिंक शहजाद एज चेयरमैन पाशा, you are on the dot, spot on. This has been a weak link in Pasha. ये हम डिस्कस करते रहे, इसको मैं फिक्स बिल्कुल करना है। देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो ज्यादातर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का मसला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, तो पाशा का हाल भी इसी तरह से। इसीलिए आपको नजर ही आता है कि जो CC मेंबर्स हैं उनका ज्यादा पर्सनल टाइम इसमें इन्वेस्ट हो रहा है और सेक्रेटेरिएट हैज गॉट वेरी फाइनाइट कैपेसिटी व्हिच वी नीड टू फंड। वी आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिव वेज of raising fund for advocating the industry success. ठीक है, थैंक यू। सो उन्होंने इस पे बड़ा काम किया था पहले। बड़ी कंपनी के ग्रुप बना ले और नसीर साहब को चीफ फंड रेजर लगाएं और वो पैसे आपको रेज करके देंगे। बड़ी कंपनी, आई एम वेरी श्योर पाशा विल बी वेरी वेल्दी। मैं I'm seriously going to have classes from Gohar Ijaz that how to effectively lobby and how to raise funding for that lobbying, के वो हर साल जो है ना 40-50 अरब रुपया ले जाते हैं गवर्नमेंट से टेक्सटाइल वालों के लिए।
चले ये मेरे चले ख्याल सर, में वो- ये वो जो लॉबिंग का ये वो एरिया जो जिसमें हम लोग वी सीरियसली नीड टू वर्क टुवर्ड्स। बट जैसे शहजाद ने कहा कि आपकी जो कैपेसिटी, जैसे हम गवर्नमेंट कैपेसिटी की बात करते हैं, वैसे पाशा की कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है, सेक्रेटरीट बनाने की ज़रूरत है। और उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लैक ऑफ सपोर्ट है, उसको हमें ज़ाहिर है अपनी फिर एक्टिविज्म से कंपनीज को मिलके खुद कुछ करना पड़ेगा उसको, कि पाशा बिकम स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मैं कि एक वो बात सॉरी एक बात हाँ जी। जरूर कर दूं, वो ये है कि पाशा का जो भी हमारी कैपेसिटी है, उसके आधे से ज्यादा टाइम जो लगता है, जो बात की नसीर साहब ने, वो अपोजिंग फोर्स को मैनेज करने में लगता है। सो अगर तो हमारे पास हर दफा ना वी गॉट सम न्यू कर्व बॉल कमिंग टू आवर साइड, तो अगर वो कम हो जाए तो आई थिंक वी कैन डू मच मोर। लेकिन वो एवरी सेकंड डे वी गॉट अ न्यू चैलेंज, और वो चैलेंज एक्सपोर्ट बढ़ानी है। वो ये होता है कि करंट बिजनेस है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वो भी बहरहाल एक जो है सो देयर अ बिग मैसिव नॉइज टू इट। तो अच्छा जी, सो अब मैं क्लोजिंग की करीब आ रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू आस्क हमारा कि आपने सुन लिया सारी पैनलिस्ट को। फिलहाल हमें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नज़र आ रही कोरोना के अंदर भी, या अदरवाइज भी पोस्ट कोरोना रिसेशन भी एक्सपेक्टेड है, और बिजनेसेस के लिए डेफिनेटली मुश्किल हालात हैं। लोकल बिजनेस में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। सो हाउ डू यू प्लान योर बिजनेस स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड एज अ प्राइवेट बिजनेस? I would like the audience to listen to that, and maybe they can draw some direction. I think the way I look at it, इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत opportunity है to increase the export, because right now if you look at the global market, there's a level playing field. जो जितनी बड़ी global companies भी हैं जिनकी presence in different markets थी, वो भी अपने आप को देख रही हैं कि मतलब उनके जो मेन सेंटर्स हैं वो 3 या 4 या 5 कंट्रीज में महदूद हैं, और उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं कंट्रीज में महदूद हैं। तो उनके लिए भी ग्लोबली ऑपरेट करना is as challenging as for a company from Pakistan. So from our side, I think there's opportunity in that, because right now people are used to work from home, and they are used to delivering on services and products remotely. Okay, so if we can market our talent, and if we can market our brand, then definitely there would be opportunities which can open up, and we would be given the same chance like any other country would. So we should focus on that opportunity and try to increase, the export and find the opportunity in this situation. Because otherwise, अगर हम यही कहते रहेंगे कि there's no hope and everything is negative and all that, so then our industry is already too small to be able to absorb such a shock. ठीक है, very good thought. We need to be optimistic about our business and work towards that. So Barkan, your parting thoughts, and what do you think SMEs कैसे इस टाइम में अपने आप को पोजीशन कर सकती हैं, और जो डाउन साइड है उससे बचें, और कोई अपॉर्चुनिटी है तो उससे फायदा उठाएं? What is it that you look at? तो अभी तक शहजाद भाई की वो बात समझ आ रही है कि एक ऐसा मसला है कि अगले मन भी रहे ने तो कुछ कर भी नहीं रहे. So that is the problem that we have. SMEs की जहाँ तक बात है, I think SMEs इस वक्त जो फोकस कर सकती हैं, डेफिनेटली देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू एज एन इंडस्ट्री, कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसी को मैं कहूँगा कि हमें फोकस करना चाहिए स्पेशली एसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट. हम लोग अभी तक जो हैं वो सर्विस सेक्टर बेस्ड हैं. हम लोग हमें काम देते हैं, हम वो करते हैं और डेवलप कर देते हैं. एंड वी हैव all of our big companies and our small companies have not succeeded in developing good solutions. जिन्होंने एक बनाया हुआ है उनके पास भी एक ही है. They have not been able to make the second solution or the third solution. तो मैं ये कहूँगा कि this is probably a good time to do some soul searching, कि आप अगर SME हैं तो कोई छोटी चीज, मे बी आज देखें हाफ स्टाफ है, कोई वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास कोई वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास solutions एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास SaaS based businesses एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमारे पास
कोई ऐसा बड़ा सोल्यूशन नहीं है जिसको हम कस्टमाइज करके किसी कंपनी को दे सकें। तो जिस सेक्टर में भी आप जाएं, आप प्रोडक्ट मांगे, आपको प्रोडक्ट नहीं नजर आएगा। आप कोई ट्रैवल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लेने जाएं, आपको कोई ट्रैवल मैनेजमेंट का सोल्यूशन नहीं मिलेगा जो काyak टाइप एग्रीगेटर हो। कोई चीज आप ढूंढें, आपको हार्डली मिलेगी। तो इसमें हमें अगेन, एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट हेल्प करे। गवर्नमेंट का मसला ये है कि गवर्नमेंट इस तरह का सारा फंड एकेडमिया की तरफ रिसर्च डायरेक्ट कर देती है, जो सारा पैसा हर साल जाया कर देती है, और 15 साल से जाया कर रही है। पहले इग्नाइट के पैसे भी वहां चले जाते थे, अब उन्होंने थोड़ा सा स्टार्टअप्स की तरफ फोकस करना शुरू किया है। तो आई थिंक दिस इज एन एरिया, और जो एरियाज ग्रो कर रहे हैं स्पेशली हमें उनको देखना है, और उनमें हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में और आईपी डेवलपमेंट छोटी और बड़ी सब कंपनीज को देखना चाहिए, so that we have our direct customers rather than people outsourcing to us. ठीक है, सो आई थिंक वेरी वेरी गुड थॉट के अपने आप को वैल्यू ऐड करें, कोई आईपी डेवलपमेंट की तरफ जाएं, और दिस इज हाउ, अगर उनके पास लोग बेंच पे हैं, दैट्स द बेस्ट वे दे कैन यूटिलाइज इट राइट नाउ एंड मूव टुवर्ड्स दैट। नसीर साहब, योर पार्टिंग थॉट्स और आपकी एडवाइस फॉर द इंडस्ट्री इन पाशा। जी, मेरा एक बड़ा पुराना एक इंडस्ट्री, और बाय एंड लार्ज दैट शिफ्ट, हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं, so I think ये I don't think there's any patch on motorway that actually works with the 4G signals. ठीक है, so I will move on to summarizing today's जो हमारी discussion हुई है, we believe average लें तो आप east of the world, उसकी वजह ये है कि so I will summarize what I have discussed today. I think overall जो government ने budget announce किया है, that budget was unfortunately not reflective of the ambition and the vision the government has talked about, और especially exports के लिए बहुत ही meager 40 million rupees, जो कि probably $2-3 million बनते हैं, that's too low to brand a country and the entire industry. और कोई बजट में प्रोविजंस नहीं नजर आ रही खास। देयर हैज बीन कोविड के अंदर some and otherwise some good steps जो हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, रज़ाक दाऊद की तरफ से, और इवन पंजाब गवर्नमेंट में देयर हैव बीन सम पॉजिटिव स्टेप्स, बट बाय एंड लार्ज जो एक्सपोर्ट्स के एम्बिशन हमने जो गवर्नमेंट ने भी डिफाइन किया, एंड दे अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, उसकी तरफ कोई there's no concrete step either in the budget or in the on the either on the PSDP side or on the tax side. और secondly what we see is कि जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं जिसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की बात की शहजाद ने, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है जिसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री को ब्रांड करने के लिए, आईटी के लिए, मेड इन पाकिस्तान की बात की कि इवन दो प्रोजेक्ट्स तो हो रहे हैं मगर वो या गवर्नमेंट के इदारे खुद कर रहे हैं या फिर वो बाहर से कोई बड़े वेंडर्स आते हैं और वो करते हैं, और लोकल कंपनीज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसकी। सो डिजिटल पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, उस डायरेक्शन में भी कोई काम नहीं हो रहा। और एक और मसला जो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं आईटी के, मगर वो ओवरलैपिंग रोल्स हैं, मगर कोई डिसाइसिव इस तरह की किसी के पास विजन या पावर नहीं है जो कि हु कैन डिलीवर ऑन ऑल द थिंग्स, प्रपोजल्स, डायरेक्शन, स्ट्रेटजीज जो कि उनके पास ऑलरेडी हैं। Otherwise, when Pasha and the industry leaders go towards the politicians, the bureaucracy, they listen to us, but वो उससे आगे जब उसकी implementation है तो वहाँ पे government में capacity बिल्कुल नहीं है उसको implement करने की। And because of that, COVID के अंदर भी बहुत बड़ी opportunity जो companies के लिए बनी थी, जिसके अंदर remote working अब दुनिया में हो रही है और remote working acceptable हो गई है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग
की तरफ भी लोगों का कॉस्ट कटिंग की तरफ भी रुझान जा रहा है. So this could have been an opportunity that Pakistan could have tapped. और कोरोना में जो डाउन साइजिंग हुई, कंपनियां नहीं बिजनेस सर्वाइव कर सकी, पूरी दुनिया सपोर्ट दे रही है उनको, मगर जो भी स्टेट बैंक की इंटरवेंशन थी दे वर नॉट रेलिवेंट फॉर द आईटी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल एंड ऑल दैट. सो ये सारी चीज़ें हैं हमें नज़र आती हैं कि सो फार जन बाय एंड लार्ज 2 साल में इस गवर्नमेंट में कोई कंक्रीट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी. And for that, कुछ हमारे panelists are kind of have been working for a long time, 10-20 years, and they see a pattern. And advises not to keep our hopes too high with the government and do whatever we can do as an industry. और जैसे नदीम साहब ने कहा कि हम बजाय कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें बहुत ज़्यादा, एज एन इंडस्ट्री एंड एज एन एसोसिएशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को पूल इन करें रिसोर्सेज को, एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फिक्स आवर इश्यूज. With that, I thank all the panelists. We have 5 chairmen of Pasha, जिनका collective experience यहाँ से government dealing का has been, I think, decades से ज़्यादा का है. और Amara has been really insightful in the entire discussion as well. And I think with that, we would thank our audience, and Allah Hafiz.